Times Now impact in relation to the Palamu forced eviction story. BJP leaders will be meeting at 11 o'clock at the Ranchi BJP headquarters. They're likely to be visiting Palamu and will stay there overnight. So this issue has now escalated. The opposition in the state of Jharkhand taking cognizance of what's happened in Palamu with the eviction of 50 Mahadalit families from the area, and the BJP will now be taking this matter up very aggressively. And remember, it is only Times Now that you can actually watch this story happening and unfolding, because nobody else seems to be bothered to cover this story as far as what's transpired and what has unfolded with the horror ordeal of those Mahadalits that they have been sharing with us. Now, in all probability, they will be now sharing with the BJP leaders who are all set to visit them. Straight away going across to Mohit now. Mohit, you've been covering and getting that story for us from the ground there. This is the Palamu Palayan that we are talking about. Now we are getting to know there are many of those BJP leaders who will be visiting those families. Well, yes, Times Now is the only channel on the ground who have covered the length and breadth of Palamu to get the real story behind the exodus of Mahadalits in Palamu area. And now, after we showed the plight of all those people yesterday, and now we see that the opposition in the state of Jharkhand had taken the cognizance of the matter. Today at 11:30 a.m. at Ranchi headquarters of Bharatiya Janata Party, the top leadership of the BJP from Jharkhand will meet and they will decide on the further course of action. Now, it's also likely that they will be visiting the Pandu area of Palamu where this incident has happened, and we still don't know that whether today they'll be visiting or tomorrow, but yes, they have confirmed to us that they have a meeting regarding this and they will be visiting Palamu. So the opposition has taken the cognizance of the story done by Times Now, because we have come on the ground and we have shown that how the people from Muslim community have clearly raised down the houses of the Mahadalits at the Pandu area, and now the rehabilitation work is going on, but still they are being lost at the old Thana building, which is there near the Pandu police station. So that is being the one aspect of it. The political aspect, the BJP has now taken the cognizance of the matter. They have called for a meeting, and after that it will be decided that when exactly the leaders would be coming. Interrupt you there, Mohit. Of course, we're joined right now by Mr. Deepak Prakash, who is part of the BJP in Jharkhand. Prakash जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. पलामू में पलायन हुआ है और अपनी मर्जी से नहीं हुआ है. इन 50 महादलित परिवारों को वहां से फोर्सिबली एविक्ट किया गया. क्या रणनीति होगी बीजेपी की इस मामले में अब से? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. जब से झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से आदिवासी और महादलितों के साथ अत्याचार और अनाचार बढ़ा है. आप उसी दृष्टिकोण से देखिएगा तो पांडु की जो घटना है बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, और सभ्य समाज इसको कभी भी इजाजत नहीं देगा. सच ये है कि वहां पर महादलित परिवार लगातार 50 वर्षों से पहले से लोग रहते आए हैं. उनके आवासों को तोड़ा गया, उनको बेघर करने का काम अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, वहां के स्थानीय प्रशासन और साथ ही साथ जो आज यहां सत्ताधारी दल उनके संरक्षण में हुआ. भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लिए. इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं घटी है. संथाल परगना में, जामताड़ा में घटनाएं घटी थी. इस प्रकार की परिस्थिति आज हम कह सकते हैं कि आदिवासी और महादलित परिवार सबसे ज्यादा असुरक्षित इस झारखंड में है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जो आक्रोश की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जिला की इकाई, मेरी मंडल की कमेटी, वहां के हमारे विधायक, सारे लोग इन चीजों पर जाकर के और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन का. लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भी बैठेगी और विचार करेगी कि आगे इस पर हम कैसे बेहतर करके जिनके साथ अन्याय हुआ है महादलितों के साथ, उनके साथ हम कैसे समर्थन को बढ़ा सकते हैं. उनके जो घाव लगे हैं, उनके दिल में जो घाव है, उसको हम कैसे मरहम लगाने का काम करें. जी, पर दीपक जी, आप आगे की रणनीति तो बता रहे हैं, क्योंकि टाइम्स नाउ सिर्फ इकलौता एक ऐसा चैनल है जो फॉलो अप कर रहा है जिनके साथ ये हुआ. क्योंकि हम वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं दीपक जी, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें कपड़े तक अपने लेने का टाइम नहीं दिया गया, किस तरीके से उनके घर गिरा दिए गए, किस तरीके से उनके मंदिर तोड़े गए. तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि वहां के जो लोकल अथॉरिटीज है उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि उनको अलग जगह दी जाएगी, इनको अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा. वो अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकते
सकते दीपक जी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, अपने वजूद और अपने पहचान का एक आयाम होता है, वो होता है घर। और घर से बेघर करने वाले पर कोई कार्रवाई न करते हुए इन लोगों को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट का आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन, और राज्य सरकार के इशारे पर यह हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से ये सरकार आई है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई है। महादलित आदिवासी समाज पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही, आगे भी हम संघर्ष करेंगे। पांडु में जो घटना घटी है, उन सब थी मन में तकलीफ हुआ है पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को। हम लोग आज रणनीति बना करके हम इस आंदोलन को भी तेज करेंगे। दलितों की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनेगी। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि झारखंड की जो प्रशासन है और वहां के जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि एक लैंड डिस्प्यूट है। क्या आप मानते हैं कि ये केवल एक लैंड डिस्प्यूट है? देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि टाइम्स नाउ बहुत ही बेहतर ढंग से इस अन्याय जो हुआ है, पांडु जो पलामू में पड़ता है हमारा, उसके अन्याय के खिलाफ जो हुआ अन्याय के खिलाफ आप भी मुखर हुए हैं, जिससे और भी ज्यादा हम सब लोगों को लड़ाई लड़ने में एक ताकत और एक नई ऊर्जा मिली। जी, लेकिन दीपक जी, आपको सोरेन सरकार के बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि वो तो चक्कर काट रहे हैं रायपुर और रांची के बीच। किसी के पास वक्त नहीं है कि वो पलामू खुद जाए और खुद से दायरा करे कि वहां पे आखिरकार हो क्या रहा है। सोरेन सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर हमारे विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे वहां पर जिला के जितने हमारे सम्मानित नेता हैं, सब लोग इस दर्द को अपना दर्द समझते हुए वहां पर जाकर के उनकी जो घाव है उस पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। राज्य वहां पर जिला प्रशासन दबाव बनाए हुए हैं। अब थोड़ा और हम ताकत लगाएंगे इस आंदोलन में। इधर अंकिता के मामले पर हम सब लोगों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है। अब इस मामले को भी हमने गंभीरता से लिया है। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, उनके साथ अन्याय हुआ है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सभ्य समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस आंदोलन वहां पर हो रहे हैं, सकारात्मक आंदोलन हो रहे हैं, उसके साथ खड़ी है। वहां समाज भी खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। और हम आगे भी इसके बारे में और बेहतर कैसे हम आंदोलन को कर सके, इसके बारे में भी विचार करेंगे। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, जब कैराना में उत्तर प्रदेश में पलायन हुआ सन 2016 में, तभी एनएचआरसी की एक कमेटी बिठाई गई और उन्होंने जांच की उस मामले में। क्या आपकी उम्मीद है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इस बात को प्रोब करे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है झारखंड की प्रशासन पर? निश्चित तौर पर इसके पहले भी कई घटनाएं घटी तो हम लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया, पीड़ित समाज ने आग्रह किया अनुसूचित जाति आयोग से, और आयोग के सदस्य आए हैं और उस परिवार को न्याय मिला है। ऐसे जामताड़ा की घटनाएं भी घटी हैं। इस वक्त भी मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, अनुसूचित जाति आयोग आकर के पूरे चीजों को गंभीरता से समझे और न्यायपूर्वक जो उस अपने स्तर से कार्रवाई करने की दिशा में आगे पहल करे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन आप और आपका प्रतिनिधिमंडल अगर जब वहां पहुंचेंगे, टाइम्स नाउ की टीम फॉलो अप करेगी सर, क्योंकि हम ही हैं वही चैनल ग्राउंड पे जो ये तस्वीरें हैं जो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि वहां पे आखिरकार झारखंड में हो क्या रहा है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विल कंटिन्यू टू गेट यू मोर ग्राउंड अपडेट्स फ्रॉम झारखंड एंड अदर टॉप स्टोरीज एज वेल कमिंग अप ऑन द अदर साइड ऑफ अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।